Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine by the grace of Allah and will be saved. Students, welcome to all of you in my class, and today we will start unit number 4, first aid, and it is of class 10th. Students, before starting the lesson, let me state clearly that in this chapter we will study about first aid. In our daily life, when we get injured, we need help of someone who knows how to handle these issues. And in this regard, many institutions are training the young people to meet such kind of situation, or you can say such kind of circumstances. So let's start our lesson with reading of paragraph number 1. We all need help at times in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. It is the temporary and immediate help. This timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life-saving. Any layperson can be trained to administer first aid. This first aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. Explanation देखते हैं इसकी. We all need help at times in our lives. हमें अपनी जिंदगियों में बाज़ औक़ात मदद की ज़रूरत पड़ती है. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. हो सकता है बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो जाएं या ज़ख्मी हो जाएं. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us. जब हम ज़ख्मी हो जाएं या अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें मदद के लिए किसी की ज़रूरत होती है. Someone who knows what to do. किसी ऐसे शख्स की मदद की ज़रूरत होती है जो ये जानता हो कि क्या किया जाए. It is temporary and immediate help. Temporary आर्जी, immediate help फौरी मदद. ये आर्जी और फौरी मदद होती है. This timely assistance comprising simple medical techniques, तिब्बी मुहारतें, is most critical to the victims and is often life saving. ये वक्ती मदद जो सादा तिब्बी मुहारतों पर मुश्तमिल होती है, मुतासरा अफराद के लिए निहायत अहमियत रखती है और अक्सर जान बचा लेती है. Any layperson can be trained to administer first aid. किसी भी गैर तरबियत याफ्ता इंसान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए तरबियत दी जा सकती है. This first aid can be carried out using minimal equipment. ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो कम से कम सामान को इस्तेमाल करके दी जा सकती है. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. इब्तदाई तिब्बी इमदाद में जख्मों की देखभाल से लेकर मुतासरा शख्स या मुतासरा बेहोश इंसान से पेश आने तक का इल्म शामिल है. Students, the first paragraph is introduction of first aid, that this is immediate help which is usually life-saving, and to handle these situations we should have minimal equipment like first aid kit, and this help starts from minor cuts or you can say minor scrapes. Students, we have a question in the side box and this question is related to first paragraph. What is the importance of the knowledge of first aid in crisis management? हंगामी सूरत हाल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म की क्या अहमियत है? First aid helps to save lives of people. So, in this respect, it plays a very important role in crisis management. हमेशा जो फर्स्ट एड है वो लाइफ सेविंग होती है. बाज़ औक़ात कोई ऐसा सीरियस हादसा हो जाता है जिसमें फर्स्ट एड अगर ना दी जाए तो इंसान की जान जा सकती है. Coming towards the next paragraph, cut and scrapes. Handling minor accident at home or on the road develop a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room, yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to manage the crisis and take care of all. Cuts and scrapes, explanation देखते हैं इसकी. जख्म और खराशें. Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. सड़क पर होने वाले मामूली हादसात में अमूमन देखभाल करने से हंगामी हालात से निपटने का शऊर पैदा होता है. This may prepare people to tackle with निपटने का unexpected emergencies with great confidence.
ये लोगों को नहायत एतमाद के साथ गैर मुतवक्को हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। क्या चीज तैयार करती है हमें? इब्तदाई तिबी इमदाद का जो इल्म है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में अमूमन इमरजेंसी रूम में या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। येट प्रॉपर केयर इज एसेंशियल इम्पोर्टेंट। येट प्रॉपर केयर इज एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस मीन पेचीदगियां। ताहम इन्फेक्शन या दीगर खराबियों या पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात जरूरी होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दर्ज झैल में आपके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं या कुछ ऐसी रहनुमाई मौजूद है जो आपको जख्मों की देखभाल करने में या हंगामी सूरत हाल से निपटने में मदद कर सकती है। Students, this paragraph is for our awareness that we should be ready to meet the emergency crisis. Minor cuts can be handled by our own immediate and temporary first aid. Students, the first point of first aid is stop the bleeding. खून का बहाव रोकना। Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own if they don't apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, ask medical or seek medical assistance. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में खून अपने आप बहना बंद हो जाता है। इफ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। और अगर खून बहना बंद ना हो तो साफ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव रखें। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड। और अगर मुसलसल 20 या 30 सेकंड तक आप दबाव रख सकते हैं और अगर मुमकिन हो तो जख्म की सतह बुलंद रखें। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। ये बार बार मत देखते रहें कि खून बहना बंद हुआ या नहीं, बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट हैज फॉर्मिंग एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। डिसलॉज द क्लॉट। क्लॉट मीन खून का लोथड़ा, यानी जख्म के ऊपर जो खून जम जाता है जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। दैट फॉर्मिंग एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, क्योंकि इससे जो सख्त जिल्द बन रही है या जो खून जम रहा है इसे नुकसान पहुंचेगा और वो अपनी जगह से हट जाएगा। If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. और अगर अब भी खून बहना बंद ना हो या मुसलसल दबाव के बाद खून बहता रहे तो तिब्बी इमदाद हासिल करें या अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। Students, in this paragraph there is information about cuts and we are told that how can we handle them. To stop the bleeding, you have to put minor pressure on the cut and don't uncover the cut again and again to see that if bleeding has stopped or not. The next point, clean the wound. Rinse out the wound with clean water. To clean the area around the wound, use soap and a washcloth. But soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. If debris still remains, see your doctor. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. The next point is clean the wound. जख्म साफ करें। Rinse out the wound with clean water. जख्म को साफ पानी से साफ करें। To clean the area around the wound, use soap and a washcloth. और जख्म के इर्द गिर्द के एरिए को या इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए साबुन और धोने का कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन जख्म को खराब कर सकता है या इसमें सोजिश पैदा कर सकता है। सो कीप ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। ताहम इसको असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। एक्चुअल वाउंड मीन जहां आपको कट लग गया है। इफ डर्ट और डेब्री रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद भी जख्म में मैल कुचैल या गर्दो गुबार बाकी रह जाए, यूज ट्वीजर्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। तो इन ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ किया हुआ ट्वीजर इस्तेमाल करें या चिमटी इस्तेमाल करें। इफ डेब्री स्टिल रिमेन्स, और अगर गर्दो गुबार अब भी बाकी है, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें।
थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, और मुकम्मल तौर पर जख्म की सफाई इन्फेक्शन यानी जख्म को खराब होने से बचाना, इन्फेक्शन और तशन का खतरा कम करती है, यानी टेटनस का खतरा या इस बीमारी का खतरा कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, यू शुड कीप योर वाउंड क्लीन एंड टू क्लीन द वाउंड यू शुड यूज टूल्स क्लीन विद अल्कोहल। दीज काइंड्स ऑफ मेजरमेंट keep the wound safe from infection. Students, next point is apply an antibiotic cream or apply an antibiotic ointment. जरासीम कश अद्वयात का इस्तेमाल। After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. The products don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. Certain ingredients in some ointment can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. जख्म साफ करने के बाद इसकी सतह को नमदार रखने के लिए या नम रखने के लिए इस पर कोई भी एंटीबायोटिक या जरासीम कश क्रीम या मरहम लगा दें। The products don't make the wound heal faster. ऐसी अदवायात से जख्म तेजी से नहीं बढ़ता, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, लेकिन इससे आप अपने जिस्म में जख्म भरने के कुदरती अमल को ज्यादा तेज कर सकते हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल। बाज मरमों के कुछ अज्जा कुछ लोगों में सोजिश पैदा कर सकते हैं, यानी कुछ लोगों को ऐसे ऑइंटमेंट से जो है वो एलर्जी हो सकती है। इफ अ रैश अपीयर्स, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। और अगर सोजिश हो जाए या सोजिश पैदा हो जाए, कुछ रैशेज आ जाएं, तो मरहम इस्तेमाल करना बंद कर दें। स्टूडेंट्स, टू कीप द सरफेस ऑफ द वाउंड मॉइस्ट वी शुड यूज क्रीम और ऑइंटमेंट, एंड इफ रैशेज अपीयर इन केस यू शुड हैव टू स्टॉप यूजिंग सच काइंड ऑफ ऑइंटमेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कवर द वाउंड। जख्म को ढांप कर रखें, ढक कर रखें। Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. पट्टियां जख्म साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया से बचाने में मदद देती हैं। After the wound has healed enough to make infection unlikely. जब जख्म इस हद तक भर जाए कि उसकी खराबी का खदशा बाकी ना रहे, exposure to the air will speed wound healing. तो इसको हवा में खुला छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से जो है हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है, मतलब जख्म जल्दी से ठीक होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है चेंज द ड्रेसिंग। पट्टियां तब्दील करते रहें। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। इफ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स और स्टेरॉयल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। दीज सप्लाईज जर्नली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी बदलते रहना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। कम अज कम रोजाना पट्टी तब्दील करें, या कभी ये गीली या खराब हो जाए या गंदी हो जाए तो इसको बदल दें। इफ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आपको अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स और स्टेरॉयल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। तो आप चिपकने वाले मवाद के बगैर मिलने वाली पट्टियां इस्तेमाल करें, या इस जगह पर साफ कॉटन या रुई रखकर इसे पेपर टेप या रुई की मदद से हल्की लचकदार पट्टी बांध दें। दीज सप्लाईज जर्नली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज। ये अशिया आमतौर पर अदवायात फरोशों से मिल जाती हैं, यानी आपको फार्मेसीज या किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकती हैं। Students, the main point of this paragraph is that you should have to change the dressing on daily basis. Students, next point, watch for signs of infection. Infection की अलामात का जायजा लें. See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness. अपने डॉक्टर से रजू करें अगर आप जिस्म में या जख्म में किसी भी किस्म की सुर्खी को महसूस करें, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ते हुए दर्द को, ड्रेंज या पानी का रसना, वार्मथ और स्वेलिंग, तपिश या सोजन नजर आए। इन सारे केसेस में अगर ये सारे केसेस आपके जख्म में कोई भी जाहिर हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। नेक्स्ट फर्स्ट पढ़ते हैं। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स,
यानी हर दफ्तर, कारखाने, घर या स्कूल के पास एक काबिल रसाई फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा चीजें शामिल हों। फर्स्ट एड बुक, सबसे पहली चीज उसमें क्या होनी चाहिए? फर्स्ट एड बुक क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, जिसमें ये वाज़िया तौर पर लिखा हुआ हो कि इन मसाइल से कैसे निपटना है। जो फर्स्ट एड जो है वो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज हमें देता है उस बारे में एक बुक होनी चाहिए जिसको पढ़ के आम आदमी भी जो है वो सरकमस्टांसिस से निपट सके। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव बैंड एड प्लास्टर्स। Band aid or sticking plasters are good for dressing small wounds. They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. Make sure the band aid is big enough to cover the wound. If not, you should use a dressing instead. Explanation देखते हैं। Band aids or sticking plasters are good for dressing small wounds. छोटी बैंड एड्स मीन मरम पट्टी, प्लास्टर्स यानी छोटी किस्म की पट्टियां, चिपकने वाली पट्टियां, जैसे आप वो सनी प्लास्ट यूज करते हैं। छोटी पट्टियां छोटे जख्मों के लिए अच्छी होती हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स। अगर हमें कोई छोटा कट लग जाए या हमें कोई जख्म छोटा आ जाए तो हम उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें हर किस्म के साइज की मिल सकती हैं। मेक श्योर द बैंड एड इज बिग इनफ टू कवर द वाउंड। इस बात को यकीनी बनाएं होनी चाहिए ताकि वो आपके जख्म को ढांप सके। इफ नॉट, यू शुड यूज इंस्टेड। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसकी बजाय कोई दूसरी पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, इलास्टिक बैंडेजेस। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियां। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स। स्प्रेन्ड जॉइंट्स मीन ऐसे जॉइंट जहां पे आपको मोच आ गई हो, स्प्रेन्ड मीन मोच ज़दा। और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, यानी इलास्टिक बैंडेजेस लचकदार पट्टियों को आप कब इस्तेमाल करते हैं? टूटी हुई हड्डी या बाजू या कोई और भी आपका कोई जॉइंट है जिसपे मोच आ सकती है, तो आप उस सूरत में इन लचकदार पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉज एंड एडहेसिव टेप। गॉज एंड एडहेसिव टेप जालीदार पट्टियां या एक जालीदार पैड। गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट and control bleeding. For larger cuts and scrapes, you will need adhesive tape to keep the gauze in place. In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. अब हमारे पास गॉज पैड्स कौन से होते हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कहीं चोट आ जाती है, जख्म गहरा होता है, तो उस सूरत में डॉक्टर जो है एक छोटे से पैड पे कोई भी मेडिसिन, स्पिरिट वगैरह अप्लाई करके वो डायरेक्ट जो है वो जख्म पे रखता है, तो उसको हम कहते हैं गॉज पैड फॉर लार्जर कट्स। और ये यूज कब किए जाते हैं? जब हमारा जख्म बहुत गहरा होता है या हमें बहुत गहरी चोट आई होती है। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। आपको एक चिपकने वाली टेप की या पट्टी की जरूरत होती है जो उस पैड को अपनी जगह पर कायम रख सके। इन एन इमरजेंसी, अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज्ड टू कवर द वाउंड। और इमरजेंसी की सूरत में या हंगामी सूरत हाल में आप एक साफ सुथरा कपड़ा, एक तौलिया या एक साफ सुथरी टी शर्ट भी जख्म को कवर करने के लिए या जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, 5 नंबर पॉइंट, एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैप्स एंड कॉटन वूल। हमारी फर्स्ट एड में एंटीसेप्टिक वाइप्स होने चाहिए या रुई होनी चाहिए जिस पर हम मेडिसिन अप्लाई करके, कोई स्पिरिट वगैरह अप्लाई करके अपने जख्म को साफ कर सकें। सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स, सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। एक सीजर होनी चाहिए हमारे फर्स्ट एड किट में ताकि हम उसको यूज कर सकें टेप या कोई भी पट्टी काटने के लिए। लेटेक्स ग्लव्स, प्लास्टिक या रबर नुमा दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। अगर आप किसी अजनबी को इब्तदाई तिबी इमदाद दे रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो उस सूरत में हमें लेटेक्स ग्लव्स का यूज करना चाहिए और इनका होना हमारी फर्स्ट एड किट में बहुत लाजमी है। कैलमाइन लोशन इज यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। अगर बहुत तेज सूरज की शुआएं आपकी स्किन को खराब कर देती हैं या कोई चीज आपको ढस जाती है तो उस सूरत में हमें इस लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लिनिकल थर्मामीटर, एक थर्मामीटर होना चाहिए फर्स्ट एड किट में। एनाल्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ऐसी टैबलेट्स होनी चाहिए जो हमें वक्ती तौर पर जो है वो दर्द से निजात दे सकें।
Students, after reading the chapter, now we will move toward the glossary of this chapter. The first word is accessible. काबिल रसाई, हर किसी की पहुंच तक. Easy for anyone to obtain and use. Adhesive, sticky, gluey or you can say sticking. Antibiotic, जरासीम कश अद्वयात, जरासीम को खत्म करने वाली अद्वयात. A substance which is capable of destroying or inhibiting the growth of bacteria or other microorganisms. जो बैक्टीरिया को या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकती है. इन्फेक्शन, द एजेंसी बाय विच डिजीज इज काज्ड और ट्रांसमिटेड. इन्फेक्शन, आपके जिस्म पे कोई जख्म है और वो जख्म अगर किसी बीमारी के बढ़ने का सबब बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे? द एजेंसी बाय विच डिजीज इज काज्ड और ट्रांसमिटेड. या उससे बीमारी फैलती है या वो किसी बीमारी की वजह बनता है. इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, द सब्सटेंसेज दैट आर कंबाइंड टू मेक समथिंग. कोई भी मादे जोड़ के या कोई भी मादे मिला के हम कोई चीज बनाते हैं, वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू कुक अ डिश. आपको कोई खाना बनाना है, कोई डिश बनानी है, तो उसमें आप जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. माइनर, रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा. ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट कहते हैं लोशन वगैरह या ट्यूब. A medicinal preparation in the form of a soft smooth paste, tube. Rinse, धो देना, जल्दी से साफ कर देना. Wash something quickly. Tweezer, a small pair of pincers for taking up small objects, plucking out hairs, etc. Also pair of tweezers. ट्वीजर्स को हम किस लिए यूज करते हैं? अगर हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में या फर्स्ट एड किट में उसको यूज कर रहे हैं तो हम कोई भी जख्म है तो उसमें से गर्दो गुबार या कोई भी जर्रात निकालने के लिए हम ट्वीजर का यूज करेंगे. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सम अप दिस चैप्टर एंड आई विल टेल यू द थीम ऑफ द चैप्टर. स्टूडेंट्स, द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज दैट द लाइफ इज फुल ऑफ वरीज और एक्सीडेंट्स and when suddenly we fall prey of any accident we become worried. We don't know how to handle the situation, but first aid knowledge is necessary to handle immediate accident, and these aids are oftenly life saving. We can get knowledge of first aid by using minimum tools or equipment at home. So students, this was all about the lesson. Hope you got information about first aid and you will apply this first aid in your life. Students, as you have read the lesson in detail and now we will move towards the question answer, and in unit related question answers you have only one question. We will see what is the importance of knowledge of first aid in crisis management. हंगामी सूरत हाल में जो फर्स्ट एड का या इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो इल्म है वो क्या अहमियत रखता है. फर्स्ट एड हेल्प्स टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल. फर्स्ट एड हेल्प्स, इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो लोगों की जिंदगियां बचाने में हमारी बहुत मदद करती है. सो इन दिस रिस्पेक्ट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्राइसिस मैनेजमेंट. तो इस लिहाज से ये हंगामी सूरत हाल में अहम किरदार अदा करती है. कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स में हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड. व्हाई? आपको बार बार ये नहीं देखना चाहिए कि खून बहना बंद हो गया है या नहीं. ऐसा क्यों करना चाहिए? वी शुड नॉट कीप चेकिंग द वाउंड इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज फॉर्मेटिंग एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम. हमें बार बार जख्म को देखते नहीं रहना चाहिए कि खून बहना बंद हो गया या नहीं, क्योंकि इससे जो जख्म के ऊपर एक खून का लोथड़ा बन रहा होता है जिससे खून बहना बंद होता है, अगर आप बार बार पट्टी या कपड़ा हटा के देखेंगे कि खून बहना बंद हो गया या नहीं तो उस तरीके से वो हट जाएगा और दोबारा से खून बहना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम वाउंड. ऐसा क्यों जरूरी है कि हम साबुन को जो है वो एक्चुअल वाउंड से दूर रखें. द सोप कैन इरिटेट द वाउंड सो इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वाउंड. साबुन जो है वो जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है, उसको खराब कर सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको असल जख्म से यानी जहां हमें कट लग गया उससे दूर रखें. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड. कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम है या ऑइंटमेंट है, कोई ट्यूब है, लोशन है, वो कैसे मदद देता है जख्म के भरने में. एन एंटीबायोटिक और ऑइंटमेंट इज गुड इन हीलिंग
द वाउंड बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप द सरफेस मॉइस्ट एंड हेल्प्स बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। एक तो इससे क्या होता है कि कोई भी ऑइंटमेंट है या एंटीबायोटिक हम क्रीम या लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे जख्म की सतह को नम रखता है, यानी उसको ड्राई होने से बचा लेता है। और फिर उसके बाद क्या है कि ये हमारे जिस्म में जो कुदरती अमल होता है जख्म भरने का उसको तेज कर देता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड यू डू इफ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन द मोस्ट बैंडेजेस। अगर आपको चिपकने वाली पट्टियों से एलर्जी है तो आपको क्या करना चाहिए? वी शुड यूज एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। अगर हमें एलर्जी है ऐसी पट्टियों से जो चिपकने वाली होती हैं तो हमें उसकी जगह एक पैड या एक गॉज का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको फिक्स करने के लिए एक टेप यूज करनी चाहिए, या उसकी जगह हम इलास्टिक बैंडेज यानी लचकदार पट्टियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर से रुजू करने की कब जरूरत पेश आती है? वी नीड टू सी अ डॉक्टर इफ द वाउंड इज नॉट हीलिंग और वी नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेंज, वार्मथ और स्वेलिंग। हमें डॉक्टर की उस टाइम जरूरत पेश आती है कि जब अगर जख्म भर ना रहा हो या हम देखें कि जख्म में किसी भी किस्म की सुर्खी है, दर्द बढ़ रहा है या पानी उसमें से रस रहा है, कोई सोजिश है या तपिश महसूस करते हैं तो वी शुड गो टू द डॉक्टर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ। फर्स्ट एड किट जो है वो किस पे शामिल होनी चाहिए, किस पे मुश्तमिल होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एड बुक, बैंड-एड्स एंड इलास्टिक बैंडेजेस, गॉज एंड एडहेसिव टेप, एंटीसेप्टिक वाइप्स, कॉटन वूल्स, सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स, सीजर्स एंड लेटेक्स ग्लव्स, कैलमाइन लोशन एंड एनाल्जेसिक टैबलेट्स एंड अ थर्मोमीटर। ये सारी चीजें आपके पास एक फर्स्ट एड किट में मस्ट मौजूद होनी चाहिए।